कभी बात करता हूँ कि ऑडिबल तो बोला क्लियरली ऑडिबल तो सामने क्लियरली आता है, बोला क्रिस्टल क्लियर तो सामने बोल रहे क्रिस्टल क्लियर। अपना हिसाब से कुछ थोड़ा दिमाग लगा, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, थोड़ा सा क्रिएटिव बन। वो अपन जब छोटे थे ना तो उस समय पर लड़ते थे, तो हम जो बोलते सामने वाला वही बोल रहा है हमारे समय, बोला तू बंदर, तो तू बंदर, ये तो तू वो। मैं कितना क्रिएटिव सोच रहा हूँ यार, तू भी तेरा कुछ सोच, तेरे को तो सिर्फ कॉपी मार के पेस्ट कर देना है। Let me start the screen sharing from here. It's already been started for the offline students. The first thing we'll be doing today will be the loan amortization schedule in the Excel by using some functions of the Excel, MS Excel. So more sort of a part of the advanced Excel in that. You will just be looking over here for 5 to 10 minutes and you will just note down the functions. Then I'll give you some exercise to do at your home and you will be preparing the loan amortization schedule in the Excel, and you can't deny that, because you people already have the Excel, and earlier in the last semester you had the basics of spreadsheets too. So which sort of exposure you have got about MS Excel. For the 5 to 10 minutes, you will just look at it, how to prepare it. When last time around we had prepared the loan amortization schedule, my friends, we had a very chintu kind of a sum. Which kind of a sum? Chintu kind of a sum. Only 5 installments were there. Then in that we were supposed to find the loan repayment and the interest amount too. 6 columns that we used to prepare will be there over here too. But generally what happens in the real world is that you take a loan for a pretty long period of time, Home loans may be there for 15 years, 20 years, 25 years, and you pay monthly installments. Then the chintu question becomes a Bahubali kind of a question. 15 years multiplied by 12 months, so there will be around 180 installments. ऐसे पेन पेपर पे करते बैठेंगे तो क्या हो जाएगी, शाम हो जाएगी, और हमें शाम नहीं करनी है। चलो शुरू करते हैं बड़ू। अपन जाते हैं, कोई तो एक आधा क्वेश्चन ले लेते हैं। लेट मी जस्ट कॉपी एंड पेस्ट इट डाउन टू अदर सेल्स। ए डिवीजन का हो चुका है ना आपसे पहले, इसलिए तो मेरे को ना मालूम पड़ जाता है। आप लोग सही में लकी हो, अगर आपकी दूसरी बारी आती है ना, तो एज अ फैकल्टी व्हाट एवर द मिस्टेक्स वी डिड इन फर्स्ट वन, नो मिस्टेक्स इन टर्म्स ऑफ डिलीवरी और मोर सॉर्ट ऑफ ए क्लैरिटी दैट वाज रिक्वायर्ड, तो अब दूसरे में क्या मालूम पड़ जाता है, अच्छा यहाँ पे अटकेगा ये, क्योंकि वहां पे भी कोई लोगों ने ऐसे अटके होंगे ना। सो वी हैव गॉट 50 लाख रुपीज ऑफ लोन। आ जाइए, कुछ बच्चे स्वेर विहार करके आ रहे हैं, बेटा बैठ जाइए। बेटा इधर राम सीता की चौकड़ी है पहले पे, बैठ जाइए उधर। आपका यूनिफॉर्म वगैरह कुछ है बेटा? यूनिफॉर्म हजी नहीं आई हो? ओके फाइन, भरा दिया सर को, नहीं आई हो। So 50 lakhs rupees of loan we have taken at the interest rate of 7%. Somewhat near to 7% interest rates are there for the home loans offered by the different banks. आपका जो दस्तावेज का पैसा होता है ना, उसके ऊपर से होम लोन के परसेंटेज भी कई बार डिसाइड होते हैं। हाउ मच कोलेटरल यू गिव, मोर्टगेज यू क्रिएट, उसके ऊपर से होम लोन के परसेंटेज भी डिसाइड होते हैं। ऑब्वियसली योर सिबिल स्कोर ऑल्सो मैटर्स। आपने भूतकाल में किसी के साथ कुछ बुरा किया है तो आपके सिबिल स्कोर में इम्पैक्ट आ जाती है। कहीं पे भी डिले भी कर दिया हो तो सिबिल स्कोर खत्म हो जाता है, अपना थोड़ा सा कम हो जाता है। अच्छा सिबिल स्कोर माना जाता है 700 के 800 के बीच में। इफ यू हैव दैट सिबिल स्कोर, नो इट्स कंसिडर्ड टू बी अ गुड डेट। पीपल कंसिडर कोई बात नहीं, यहाँ से पैसा अपने को मिल जाएगा। 15 years and the frequency is going to be monthly. 6 columns that we used to prepare will be there as it is, serial number. Then we have got opening balance. After that we have got installment amount, and from the installment amount we have got the principal repayment. So I am writing PR over there. What is the meaning of a PR? कोई लोगों को फैकल्टी के नाम याद आ रहे हैं। Then we have got interest amount as well, right? And the last one will be closing balance. अब इसका कोई फिक्स ऑर्डर है नहीं, तुम पीआर और इंटरेस्ट को ऐसे ऊपर नीचे कर दो तो कोई तुम्हें मार्क्स काटने वाला है नहीं भैया। सीरियल नंबर कितने हो जाएंगे सर, देखो तो सही, 15 साल और कितने मंथ हो गए? 180। मतलब ऐसे हड़ू हड़ू धीरे धीरे करेंगे, गाड़ी में जाएंगे अपन ऐसे 1 फिर 2 फिर 3, तो क्या हो जाएगी फिर से, और हमें शाम करनी नहीं है। एक काम करते हैं ना अपन,
एक शॉर्टकट यूज करते हैं, कौन सा वाला कट? शॉर्टकट. प्रेसिंग द इक्वल टू just next to 3, selecting the cell which is there where 3 is written, plus 1, press enter. Now we have given the relative referencing, so once we copy and paste it down, no, it will keep on catching the previous cell. So it will be 4 and 5 and 6 and 7 and 8 and all and all and all, you know, and we want it up to 1. 15 साल और 12 महीने मतलब कि 180 पीरियड हो गए भैया. चलो आगे बढ़ते, शुरू करते, ऐसे करते 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 नीचे जाते, सिलेक्ट करते बड़ू, सिलेक्ट करते करते पेस्ट कर देते, कितना हो गया? 180. ज्यादा हो तो चलता है लेकिन कम नहीं होना चाहिए. ओपनिंग बैलेंस will anyway be how much at the first month? 50 lakhs rupees, no? So let's write it, no? And if the gender of this box will be female, no, तो उसको बुरा लग जाएगा. क्या लग जाएगा? मेकअप कर लेते, थोड़ा आईलाइनर कर देते इनकी. कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करते हो तो you can select the cell up to the last cell of the active data range at the down side. Control shift right arrow press करते हो so you can select the cell up to the last cell of the active data range on right hand side. Control shift right, control shift down, alt HBA, a shortcut key for the borders. We have applied the borders here. Good, let's move ahead. 50 लाख उधर लिप डालते हैं, वैसे के वैसे ही. मिंडा में गलती नहीं करना, अदरवाइज हमें मिंडा मिल सकता है. Installment amount, we have got a PMT function for that, no? That's gonna be same for every other installments. Amount तो सेम ही रहने वाला है. हर साल, हर महीने, जब तक कहानी है, तब तक installment amount सेम ही. For that we have got a function called PMT. Which function? PMT. Every formula function in Excel starts with a sign of equal to. We are putting PMT and someone will be like, sir, थोड़ा सा मैग्नीफायर यूज करो तो सिंटेक्स भी दिखेगा फॉर्मूला का. तो अपन जाते हैं मैग्नीफायर में, मैग्नीफायर को शुरू कर देते हैं. अब जाते हैं इंस्टॉलमेंट अमाउंट में, इक्वल टू PMT, ओपनिंग द ब्रैकेट. द फर्स्ट आर्गुमेंट वी हैव गॉट इज द रेट. रेट इज हाउ मच? 7%. वैसा ही लिखना है, कोई चेंज करने की जरूरत क्या नहीं है. 7% डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा, नहीं है. गाडरिया प्रवाह में जाने का नहीं, बिकॉज वी हैव गॉट मंथली इंस्टॉलमेंट्स, नो. So 7% is the yearly rate given to us, and if no information is given to us, we assume it's a yearly rate, right? To be divided by 12. और एक्सेल की अच्छी बात ये भी है कि वो अंदर अंदर अपना कैलकुलेशन कर लेगा, हमें अलग से वो 7% डिवाइड बाय 12 करने की जरूरत नहीं है. Pressing the comma to go to the next parameter of syntax, we have got NPER 180. कोई लोगों को 180 कैलकुलेटर में और तकलीफ होती है, तो 15 वैसे वो फुदेरी की साइन आती है ना, दैट इज अ मल्टीप्लिकेशन साइन, multiplied by 12. Pressing the comma, we have got PV. PV is the amount of loan taken. We are writing it in minus. एक्सेल अगर शाना है तो हम डेढ़ शाने हैं, क्योंकि अगर हमें अल्टीमेट आंसर पॉजिटिव चाहिए तो कुछ एक्सेल की फॉर्मूला के साथ खिलवाड़ करना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा? खिलवाड़ करना पड़ेगा. एसीपी प्रद्युमन, तो खिलवाड़ कर देते हैं. 1 2 3 4 5 6. Pressing the comma. If we do not have, putting 0, no? 0. Type of an annuity, 0 for ordinary annuity, 1 for annuity due. We have got ordinary. If nothing is given to us, we assume it's ordinary, क्योंकि ordinary का तो नाम ही ordinary है. समझे कि नहीं समझे बेटू? अच्छा, in the examination questions too, if nothing is stated, no, and you are supposed to find the future value or the present value of annuity, you will assume it as the ordinary annuity. Is it clear? Okay. Closing the bracket, sir, वैसा का वैसा. और PMT अमाउंट तो हर बार सेम ही आने वाला है ना, तो फिर ऐसे कॉपी करके पेस्ट करने की जरूरत, उतना तो करना पड़ेगा, लेकिन हर बार फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. सो कंट्रोल सी, फिर इधर नीचे 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 हड़ू हड़ू जाते जाएंगे तो क्या हो जाएगी? कॉर्नर पे डबल क्लिक करते. चलो कॉर्नर पे डबल क्लिक करते तो कितने तक आता है, चलो देखते हैं.
कॉर्नर पे गए, कॉपी नहीं करना, चलो कॉपी भी निकाल देते। फिर डबल क्लिक किया तो कितने तक आया? 180 तक आ गया यार, ये तो सही है। तो सर के शॉर्टकट की जरूरत पड़ने वाली, तो ऐसे डबल क्लिक से भी हो जाएगा। चलो ठीक है, सर का क्या हो गया, ऊपर हो गया। लेकिन मैं कर क्या आया उधर, पढ़ा हुआ तो सही, ऐसा नहीं चाहिए। मैं इसको डिलीट कर दूंगा। मेरे कितने डायलॉग काट दिए इसके ऊपर, तो मेरे बहुत सारे डायलॉग थे। कंट्रोल सी, तो सीरियल नंबर में गए, उधर से नीचे जाएंगे, कंट्रोल डाउन एरो, फिर बाजू वाले में आएंगे, कंट्रोल शिफ्ट अप एरो, प्रेस एंटर। तो ऑनलाइन वालों को समझ में आया? अच्छा बेटा, छोटा सा कंफर्मेशन दे दीजिए, अभी तक सब कुछ क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा, पीएमटी फंक्शन हमने यूज किया और नीचे कॉपी करके पेस्ट किया। डबल क्लिक से करो कि नीचे जाके करो, दोनों सेम ही है भाई, उसमें कोई डबल क्लिक में कोई ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हाँ। Principal repayment, now I have got new thing to say. If you want to know the principal repayment from the installment amount, you may use the formula called PPMT. Which function? PPMT. Now you are not aware about that. If you are not aware about the PPMT function, no, then you would have find the interest amount on the opening balance. So every point of time on opening balance, you will charge some percentage of the interest, obviously monthly in nature, and you will find the interest amount first, and then remaining balance of the installment amount will be taken as the principal repayment. Yes or no? लेकिन ऐसा करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पीपीएमटी फंक्शन है। कौन सा है? पीपीएमटी, पीपीएमटी, opening the bracket. First one is rate, 7% divided by 12, pressing the comma to go to the next one. पर, ये परी है कि क्या पर आ गए? पर मतलब कि क्या होता है? PER stands for the period. What do we mean by the PER? Period. अब principal repayment for the first period will be different from the principal repayment of the second period, and so on. थर्ड का भी अलग होगा, चौथे का भी अलग होगा, पांचवे का भी अलग होगा। तो सर एक काम करते हैं, अपने पास सीरियल नंबर तो है ही, उसका रिलेटिव रेफरेंस दे देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको सिलेक्ट करके P385 कर दिया मैंने। So now whenever I'll be copying and pasting it down, no, it will be taking automatically the next cell. Yes or no? Because it's anyway the relative reference. So 1 लेगा, 2 लेगा, 3 लेगा, 4 लेगा, 5 वाले में 5 लेगा। वैसे करते 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 वो हर एक का कर डालेगा, pressing the comma. We have got number of periods which is anyway going to be 180. Irrespective of whatever the period is going to be, whether it's 1, 2, 5, 6, 7 or 11th or 120th period. Total number of installments are anyway going to be 180. Pressing the comma. PV we have got 50 lakhs. माइनस के साइन रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रखेंगे। 50 लाख बिड़ू, 50 50 सीधा वैसे का वैसे, मिंडे में गलती नहीं करनी है। प्रेसिंग द कॉमा। If we do not have, keeping it 0, comma, and again the type will be 0, closing the bracket. So this is how the syntax will be looking like. Pressing the enter. तो प्रिंसिपल रीपेमेंट शुरू में सिर्फ कितना है? 15,700, क्या बोलते हैं हिंदी में? हिंदी में चिमोतर बोलते हैं। जो भी हो, 15,774 रुपीज, 0.75 मतलब कि 1 रुपए बढ़ा देंगे। तो मतलब ये हो गया कि इंटरेस्ट आपको कितना लगा, देखो तो सही, ऑलमोस्ट 30,000 रुपए का इंटरेस्ट गया आपके पहले इंस्टॉलमेंट में। तो वैसे बड़े बड़े लोग अपने को कहते थे कि भाई शुरू में तो है ना सिर्फ इंटरेस्ट ही जाता है, लोन में से तो कोई अमाउंट कट ही नहीं होता। तो उनकी बात सही है कि नहीं? सही बात है। ऐसा हर बार करने की जरूरत नहीं है, कॉपी करके नीचे पेस्ट करेंगे, या तो फिर क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। तो डबल क्लिक वैसा अच्छा है, डबल क्लिक इस शॉर्टकट कर देते हैं।
So we have got a double click. Principal repayment for all the years are there. For interest, we have got IPMT. Which one? IPMT. Sir, it's not going to be there in the examination. It's just for the purpose of knowledge. क्योंकि थोड़ा practical knowledge भी होना चाहिए. Equal to IPMT. एग्जाम में तो पेन पेपर पे आएगा. एग्जाम में एक्सेल कैसे निकालूं मैं? तो इसमें एक जगह पे एक्सेल यूज होता है, बाकी कहाँ जगह पे एक्सेल यूज होता है? तो मैं तुम्हें बताऊं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी का ये वाला कर दो, तो फिर तुम कैसे करोगे इधर एक्सेल में? तो कैपिटल बजटिंग के अंदर तो बड़े बड़े सम आते हैं, ऐसे यूं यूं नीचे नीचे लिखने वाला है, तो फिर कैसे करोगे? टाइप करोगे? नहीं भैया. कितना परसेंटेज? 7 डिवाइडेड बाय प्रेसिंग द कॉमा. वी हैव गॉट पर कहाँ पे है हमारे? इधर सीरियल नंबर में 1, क्योंकि एक का 1 होना चाहिए, दूसरे का 2, तो रिलेटिव रेफरेंस ही दे दिया, तो ऑटोमेटिकली हर एक का सीरियल नंबर बदलते रहेगा, बदलते रहेगा, बदलते रहेगा, एकता कपूर की सीरियल की तरह. कॉमा. Number of periods will be 180, comma, PV will be negative 50 लाख. 1 2 3 4 5 6 बराबर है, comma, FV 0, comma, type will be 0, closing the bracket. क्या प्रेस करेंगे? मेरे वाले तो कोई बोल ही नहीं रहे हैं, मैंने वो बताया. डबल क्लिक कर दिया तो हमारे पास आ गए इंटरेस्ट के अमाउंट्स. अब आप बोलोगे कि सर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस में कोई है कि नहीं? उसके लिए कुछ हमारे पास नहीं है, मैन्युअल कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा बेटा. क्लोजिंग बैलेंस इज बेसिकली द ओपनिंग बैलेंस माइनस द प्रिंसिपल रीपेमेंट यू हैव डन फ्रॉम द लोन अकाउंट, राइट? So opening balance minus the principal, PR stands for 15,774. We have got the closing balance, and the closing balance of the first will be the opening balance of second. So यहाँ पे भी relative reference दे देंगे, pressing equal to, इसको select कर देंगे 4984 को, pressing the enter. अब जाके कॉपी करके पेस्ट करेंगे, लेकिन कोई लोग क्या कहेंगे? डबल क्लिक करो. जाके हमने कर दिया डबल क्लिक, तो उधर 0 0 आ गया. तो उसका भी डबल क्लिक करेंगे तो नीचे तक उसका भी 0 आने वाला. ओपनिंग नहीं आएगा तब तक क्लोजिंग नहीं आएगा. पहले इसके लो कि पहले उसको लो. एक में तो 0 आना ही है, इसको पहले भी लिया तो इसके नीचे 0 आ जाएगा, क्योंकि वहां पे ओपनिंग बैलेंस नहीं है. हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, तो इधर से शुरू करो फिर पीछे से शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. फिर से जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, वीडियो अपना क्लोजिंग बैलेंस उधर आ गया. नीचे जाके अपन के वेरिफिकेशन कर लेंगे कितना है, मतलब कि हमारे कैलकुलेशन है वो सही है. सही है, म्यूचुअल फंड्स सही है. अच्छा, अब आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पीपीएमटी करके कोई फंक्शन आता है, आईपीएमटी आता है और पीएमटी आता है. पीएमटी इज टू फाइंड द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, पीपीएमटी टू फाइंड द प्रिंसिपल रीपेमेंट फ्रॉम द इंस्टॉलमेंट अमाउंट, and IPMT for the interest component of the installment amount. Is it clear? यहाँ पे हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी एकदम संपूर्ण होता है, एकदम. अब हम जाते हैं. हाँ, मैंने कुछ गलती की है, मेरे को हंसना मना है, तो फिर मेरे को भी सुना भैया. समापन समारोह वेलफेयर कर देते हैं. अच्छा, हो गया हमारा क्लोजिंग बैलेंस. लेट्स गो टू द सेकंड मॉड्यूल माय फ्रेंड्स. आई एम ओपनिंग द पीपीटी. वी आर नाउ जंपिंग टू द सेकंड मॉड्यूल which is about the financing decisions. Which decisions? Financing decisions. कोई लोग उसको फिनेंस बोलते हैं. फिनेंस मतलब क्या मजा है फिनेंस बोलने में? मैं फाइनेंस बोलूँ तो मेरे को फिनेंस बोल रहा है तो बोल, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ. So you may find the detailed explanation of this on page number 423 of the textbook. The name of the book is given to you. It's already been circulated to you in the Google Classroom. Moreover, few more PDFs will be circulated by me if you want to refer the other explanation about the various sources of finance.
Now, the first and foremost step before establishing any sort of a business is gathering the money. Yes or no? तुम लोगों को हायर करो, मार्केटिंग का कैंपेन बनाओ, तुम अकाउंटिंग मैनेजर रखो, अकाउंटिंग करो, इस सबसे पहले क्या होना चाहिए? पैसा तो होना चाहिए। और हर किसी के पास खुद के पैसे नहीं होते, और खुद के पैसे अगर होते भी है तो भी उनको बाहर से अगर पैसे अरेंज होते हैं, 2 4 5 पार्टनर आते हैं, या तो फिर बहुत और भी इक्विटी शेयर होल्डर्स आते हैं, तो और भी इन्वेस्टर्स हैं, तो उनको पहले क्या नक्की करना पड़ेगा कि व्हाट शुड बी द अप्रोप्रिएट सोर्स ऑफ फाइनेंस. That is what the financing decision is all about. You may find some grammatical errors over there. एक बच्चे मेरे को लास्ट टाइम आके बोल रहे थे, सर वी आर स्टडिंग इन द कॉन्वेंट स्कूल, हाउ कैन यू मेक सच अ ग्रामेटिकल मिस्टेक. तो बोला मुझे यहाँ पे नहीं पूछा था कि फैकल्टी अपॉइंट होने से पहले तुम कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो. अपना तो भाई देसी गुजराती मीडियम स्टूडेंट है, तो थोड़ा सा ग्रामेटिकल मिस्टेक को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. अ फाइनेंशियल डिसीजन विच चीज नहीं आना चाहिए, आई नो इट, is concerned with the amount of finance to be raised from various long-term sources of funds like equity shares, preference shares, debentures, bank loans, is called financing decision. In other words, it is a decision on the capital structure of the company. Now, capital structure is basically the mix of various sources of finance putting together. Sources of finance may be short-term in nature, may be long-term in nature. Equity share capital is one sort of a long-term source of finance in nature, but it may be to finance sometimes your working capital, day-to-day business requirements too. तो कैश क्रेडिट लेते हैं अपन, कई बार बैंक ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी लेते हैं, फैक्टरिंग वगैरह होती है जिसमें तुम अपने डेटर्स को दूसरी एजेंसी को सेल कर सकते हो. तो ऐसी सब अरेंजमेंट्स भी होती है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग में. सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन बोथ ऑफ दिस. नाउ कैपिटल स्ट्रक्चर इज अबाउट डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ वेरियस सोर्सेस, वेदर द इक्विटी शुड बी 40%, 60%, 50, कितना होना चाहिए, कैसे मालूम पड़ेगा, कैसे डिसीजन ले. अच्छा, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल किसी ने बोला कि लेना चाहिए, उसके प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे, स्टडी किए, कितना परसेंटेज होना चाहिए नहीं मालूम. सर बैंक लेना चाहिए, लेकिन बैंक और इक्विटी इन दोनों के बीच में कुछ बैलेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लोन और इक्विटी के बीच में. इफ यू टेक 10 crores of rupees of loan and against which we do not have say sufficient equity capital, then whether there may be some future problems due to this or not. So this all questions are answered by capital structure planning. It's a very important decision making in the finance, first of all in the business establishment. Have you heard about the deal of Reliance with the Facebook? When the coronavirus was at the peak at 2020, at that time, the Facebook had invested in the Reliance Jio, some around 8 to 10% of the shareholding of the Reliance Jio was transferred to Facebook. Now, इन लोगों को भाई साहब को 5G टेक्नोलॉजी लगानी है, इधर बड़े बड़े वादे किए हैं, वर्चुअल रियलिटी वो भी खड़ी करनी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगाना है. अब इन सब के लिए बाहर के कुछ पार्टनर्स हैं, उनके साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज वी डू नॉट हैव द कटिंग एज टेक्नोलॉजी इन इंडिया राइट नाउ. तो इनको पैसे चाहिए थे, उनको किसी और का पार्टिसिपेशन चाहिए था, तो उन्होंने सबसे पहले तो फेसबुक को कांटेक्ट किया, फिर गूगल के साथ भी कांटेक्ट किया, बाकी सब लोगों के साथ भी कांटेक्ट किया. अब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, that is a holding company of Jio. Reliance Jio is altogether a different company which is supported and financed by which company? Reliance Industries Limited. Reliance Industries Limited is artificially juridical person. Obviously every company is a separate identity, right? उनके खुद के कुछ पावर्स है, खुद के नाम पे वो प्रॉपर्टी परचेस कर सकती है, खुद के नाम पे लॉ सूट्स फाइल कर सकती है कोर्ट ऑफ लॉ में, खुद के नाम पे वो किसी और के शेयर्स में भी परचेस कर सकती है. तो रिलायंस वाज होल्डिंग द मेजर पोर्शन ऑफ द रिलायंस जियो. नाउ दे वांटेड फेसबुक टू बिकम अ पार्ट ऑफ द रिलायंस जियो. तो आइडियली क्या हो, मतलब ये कुछ अगर इन लोगों ने प्लानिंग नहीं किया होता तो क्या होता, ये जो रिलायंस के पास जियो के शेयर्स है, समझ लो वो शेयर्स आपने ट्रांसफर कर दिए अब फेसबुक को. किसको ट्रांसफर कर दिए?
The transaction was costing somewhat near to 40,000, 30,000 crores of rupees. So at that time, they didn't transfer it like this way. क्योंकि ये तो क्या हो गई आम जिंदगी, लेकिन ये तो मुकेश भाई साहब है, वो वाली कौन सी जिंदगी है, मेंटोस जिंदगी. अब यहां पे क्या होता मालूम है, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपना जो कुछ स्टेक है वो फेसबुक को ऐसे ही दे देती, तो बेसिकली रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर होल्डिंग फेसबुक में ट्रांसफर हो रही है. नाउ दैट इज बेसिकली द असेट ट्रांसफर्ड बाय RIL टू FB. Asset means the investment. That would have attracted the capital gains tax in Income Tax Act 1961. Because shares are considered to be the financial assets, property, capital asset as per the Income Tax Act. And on the transfer of the capital asset, if you are selling it to some other person, if you are making the gain on it against your purchase cost, then you are supposed to pay the income tax on it. तो इनकम टैक्स 40,000 करोड़ के ऊपर अगर लगता 5-10%, 15% भी लगता तो कितने 10,000 करोड़ रुपए हो जाते. इन लोगों ने एक भी रुपया पे किया नहीं. दैट वाज अ स्मार्ट कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग. इन लोगों ने क्या किया मालूम है, ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, उसमें जियो में उन लोगों ने इक्विटी शेयर्स नहीं परचेस किए थे, उन लोगों ने ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स परचेस किए थे. क्या परचेस किए थे? ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. Now, if the company converts these optionally convertible preference shares, then it is a conversion of asset from one form to another form. It is not a sale. Yes or no? So company converted it, say for example at 1500, and then Reliance Industries Limited, which was holding the optionally convertible preference shares, now they are converted into equity shares. Now they are transferring it to FB. तो इनका परचेस कॉस्ट अब कितने का हो गया? अदरवाइज उसका वैल्यूएशन सिर्फ 200 रुपए का पहले उनका परचेस कॉस्ट आ रहा था जब उन लोगों ने एस्टेब्लिश की थी कंपनी. अगर 200 रुपए का परचेस कॉस्ट और समझ लो फेसबुक को आप 1600 रुपए में सेल करते हो, तो 1600 माइनस 200, एक शेयर के ऊपर कितने का प्रॉफिट किया? 1400 के ऊपर आपको कितने का टैक्स पे करना पड़ता? 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, या तो फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता तो 20% एज पर द इनकम टैक्स एक्ट. पे कुछ भी नहीं किया. तो ये पहले बुद्धि चलनी चाहिए कि ऑप्शनली कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर इश्यू करेंगे फिर किसी और को कन्वर्ट करके इक्विटी में देना है तो इनकम टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा. दैट वाज ऑलमोस्ट अ सेविंग्स ऑफ 10,000 करोड़ ऑफ रुपीस इन टैक्सेशन. ये है हमारे मुकेश भाई साहब. दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर प्लानिंग. नाउ द सेम क्लास कैन बी डिवाइडेड इनटू मेल और फीमेल. यस और नो? इसी क्लास को मैं अबव एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट और एवरेज स्टूडेंट से क्लासिफाई कर सकता हूं. तो उसमें कुछ मेल भी आ जाएंगे, कुछ फीमेल भी आ जाएंगे. अच्छा, इसी क्लास को फ्रंट बेंचर्स और बैक बेंचर्स की तरह से मैं डिवाइड कर सकता हूं. सो द क्राइटेरिया ऑफ द बाइफर्केशन ऑफ द क्लास कैन बी एनी, राइट? Similarly, various sources of finance we have got, my friends. It may be bifurcated into various criteria. First is the criteria bifurcation is on the basis of period. Some are extremely long term in nature, some are medium term, and some are short term sources of finance. Then the second criteria of the bifurcation is the ownership structure. Some sources of finance are owned only by the equity shares. इक्विटी शेयर होल्डर्स वो आर दी ओनर्स. तो ओनर्स के फंड कौन से हैं और बाहर के फंड हमने कैसे उठाया? तो बाहर के फंड्स कौन कौन से भी हो सकते हैं. बैंक हो सकता है, बैंक से आपने लोन्स एंड बोरोइंग्स वगैरह लिया है वो हो सकता है. आपने डिबेंचर्स कोई इश्यू किए है तो वो भी हो सकता है. तो एवरी सोर्स ऑफ फाइनेंस वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल. वी आर आल्सो गोइंग टू सी द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ इट. लेट्स जस्ट गो टू द बाइफर्केशंस इन व्हिच पॉसिबल वेज इट मे बी बाइफर्केटेड. Then it may be the source of generation. Some may be internal, some may be external. So the same sources of finance may be having the different kind of a categorizations. Is it clear? We are starting with the first one today, and that is equity shares. Which one? Equity shares. Have you heard about the equity shares anywhere before? What do we mean by the equity shares?
All the online students as well may participate by using the chat box. क्या होता है इक्विटी शेयर्स? कहीं पे सुना है बेटा अपन ने? कहीं पे नहीं सुना है क्या? तो बताइए, ऐसा पिन ड्रॉप साइलेंस क्यों दिखाई दे रहा है मेरे को? Would anyone like to throw some light on the equity shares? क्या? One part of small part of total capital. Okay. Capital is divided into the number of shares, and then they are once they come into the market, they are. Capital is divided into various small parts. So that small part is often regarded as the share. So how many shares you have of the Reliance? That means how much ownership you have of the Reliance. Both are basically same. If someone says that I have 50% of the shareholding of the Reliance, that means they are 50% owner of Reliance. Yes or no? Anyone else? Yes, please. Financial source for a particular company. Now see, there are two perspectives to look at the shares. From the company's perspective, it's a source of finance. They are gathering the money from the people, right? But from the investor's perspective, it's a sort of an investment avenue. तो दोनों के लिए concerns अलग-अलग है. What may be risky for you may be a safe for a company, and what may be a safe for a company may be risky for you. Equity shares are risky for you because it has got some fluctuation in the equity market. Market prices may get crashed, may get up if it is a publicly traded company. But for a company, it's a very safe avenue because they are permanent in nature. Equity shares है वो कौन सा है? Permanent in nature है, तो उनको वापस पैसे पे करने की कंपनी को जरूरत है ही नहीं. Very nice. Some answers are given by Mr. Jeet, Mr. Soham. Let's go to the equity shares. We'll clear it from the very basics, and slowly and steadily we will increase our level of understanding. धीरे-धीरे लेवल को बढ़ाना है, फिर हद से गुजर जाना. Equity shares are often regarded as the ordinary shares, other than the preference shares. They are considered to be the real owners of the company. They are basically owners of the company. कंपनी को कौन ओन करता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स ओन करते हैं. बहुत ही सिंपल सी बात है. They have a control over the management of the company. Sir, how can they control the management of a company? See, in a company, there may be a chief executing officer, there may be a board of directors, there may be various people handling the various departments. For marketing, there may be a chief marketing officer. For finance, there may be chief finance officer. Then how they are different from the management? Obviously, they are different from the management, and they can control the management as per their needs. As per the Companies Act 2013, the companies are supposed to hold one annual general meeting on a yearly basis. Few decisions are exclusively kept for the equity shareholders to take. Not every decision can be taken by the board of directors. Not every decision can be taken by the company's management. Some decisions are compulsorily to be taken by whom? Equity shareholders. In the annual general meeting, via the process of voting, they pass the resolution. Now there are two types of resolution. One is ordinary resolution, another one is special resolution. In ordinary resolution, 50% of the majority should be there for passing whatever the type of voting you have done. And for special resolution, you require 3/4 of majority in favor of whatever the decision you want to take. Now there are matters explicitly mentioned in Companies Act 2013 जिसमें कोई इंटरफियर नहीं कर सकता, वो सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ही उस पर डिसीजन ले सकते हैं. अगर डायरेक्टर को भी चेंज करना है तो इक्विटी शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन पास करवा सकते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में. उनको लग रहा है कि यार ये ऑडिटर अच्छी तरीके से काम नहीं कर रहा, चलो एक काम करते, निकाल दीजिए बेटा, आपका हमें कोई काम नहीं है. तो इक्विटी शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? उनको resolution पास करके निकलवा देंगे. तो इफेक्टिवली हु हैज गॉट द कंट्रोल ओवर अ कंपनी? इक्विटी शेयर होल्डर्स. So they have got the control over the company. Not just that, even the rules and regulations through which the companies are being run, articles of association and memorandum of association,
even the changes in that can be permitted only by the equity shareholders. उनको चाहिए कि कैपिटल रेज करना है, थोड़ा सा कैपिटल बढ़ा देना है, तो वो डिसीजन कौन ले सकता है? सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स ले सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, कौन ले सकता है ये डिसीजन? इक्विटी शेयर होल्डर्स ही चेंज कर सकते हैं। और द क्लोजेस व्हिच यू हैव इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नो, इफ यू अमेंड दोस क्लोजेस in the memorandum of association, that can be done either by the ordinary resolution or by the special resolution, whatever the case it may be, it is explicitly mentioned. लेकिन वो आप कंपनी अपने हिसाब से हो, डायरेक्टर भाई साहब को मजा आया, काम मजा नहीं आ रहा है, काम करते काम वो है ना, काला रोड से निकाल के गौरी दड़ पे लगा देते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। ऐसा चलता नहीं। कंपनी हैज नो ऑब्लिगेशन टू पे द डिविडेंड। Even if there is a profit, company may say no for the dividend, obviously after taking into confidence the equity shareholders. वो बोलेंगे कि हमें तो डिविडेंड चाहिए, मतलब चाहिए, और नहीं दोगे तो फिर there will be a dissatisfaction and there may be some problems in the management too. Equity shareholders को चाहिए मतलब देना ही पड़ेगा, but company may pay the dividend, may not pay the dividend if there is no resistance from the equity shareholders side. So they haven't got any sort of an obligation, unlike loan. In loan you have got the installment. आप कोरोना वायरस है कि नहीं है, पेंडेमिक है कि नहीं है, लॉकडाउन में हो कि नहीं हो, लेकिन लोन का इंस्टॉलमेंट किधर ना किधर से निकालना ही पड़ेगा बेड़ो। इक्विटी शेयर होल्डर में तो उनको बोल दो भाई ये सब पैसा नहीं है, जो भी कुछ पैसा है ना नेक्स्ट ईयर हमें चाहिए कुछ एक्सपेंशन एक्टिविटीज के लिए, तो उनको आप मना कर सकते हो, डिविडेंड कंपलसरी नहीं। Equity share capital cannot be redeemed during the lifetime of the company. That means once they are in, they are permanently in. उनको कंपनी फोर्स नहीं कर सकती कि तुम निकल जाओ भैया इधर से, वो कंपनी में से किसी को निकालते हैं। Investors always have the upper hand over the management in the companies, right? Have you heard about Tim Cook, CEO of the Apple Limited? उनका जितना सैलरी है ना ईयरली रेम्यूनरेशन, उससे ज्यादा तो वॉरेन बफेट उसमें इन्वेस्ट करके डिविडेंड में पैसा कमा लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स एप्पल में वो एक शेयर होल्डर है, समवट नियर टू 3 to 4% ऑफ द शेयर होल्डिंग वॉरेन बफेट हैज इन एप्पल। तो उनके सीईओ की पूरे साल की रेम्यूनरेशन से ज्यादा इनका तो सिर्फ डिविडेंड पे आउट ज्यादा है। इन्वेस्टर्स विल ऑलवेज हैव द अपर हैंड ओवर द मैनेजमेंट, क्योंकि वो मालिक है, वो माई बाप है। क्या है? माई बाप है। The liability of the equity shareholders is the unpaid value of the shares, which is basically the limited liability. You must have heard about it. All the startups and business and professions nowadays are adopting the structure of company for the smooth functioning, to remove the conflicts, to avoid the conflicts among the various stakeholders. क्योंकि हर एक का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स्ड है, डिसाइडेड है, हर एक के पावर्स फिक्स्ड है, डिसाइडेड है। किंगफिशर बैंकरप्सी डाल दी विजय माल्या वाली, तो किंगफिशर के 10-10 रुपए के अगर तुम्हारे पास शेयर है तो कोई बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनको किंगफिशर से पैसे लेने हो तुम्हारे पास आए कभी, अरे भाई यार तू तो शेयर होल्डर है, मालिक है कंपनी का, इधर आजा पैसे दे दे लोन के, बोला किसी ने अभी तक? अनिल भाई साहब ने भी देवाड़ा फूक डाला, अंबानी भाई साहब, दूसरे वाले। हर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड नहीं होती, कुछ रिलायंस कम्युनिकेशन भी होती है। अब उनके जो पैसे देने बाकी थे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, तो अपन के 5-5, 10-10 रुपए के जो शेयर लेके रखे थे हमारे पास आए, तुम तो ऑनर हो, इधर आजा, तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे इसके लिए। कोई बताता है? योर लायबिलिटी इज लिमिटेड। लेकिन ऐसा पार्टनरशिप फॉर्म में नहीं चलता। ऑल द पार्टनर्स आर पर्सनली एज वेल एज म्यूचुअली लायबल फॉर ऑल द डेट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टेकन बाय द पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनर को मजा आया, पार्टनरशिप फर्म के पैसे उठा के स्विट्जरलैंड चले गए हनीमून में और वहां पे जाके एंजॉय करने लगे। जिनको देना था उनको पैसे मिले नहीं, तो जिनको नहीं देना, जिनको पैसा देना है उसके लिए हर एक पार्टनर्स विल बी इंडिविजुअली एज वेल एज म्यूचुअली रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तुम पार्टनर अंदर जो बात लड़ना झगड़ना है वो करो, कौन निकालेगा कोई नहीं करेगा, लेकिन इन द आईज ऑफ लॉ नो पार्टनर्स विल बी ट्रीटेड सेपरेटली इंडिपेंडेंटली फॉर पेइंग द डेट्स एंड लोन्स टेकन बाय द पार्टनरशिप फर्म। Everyone will have to contribute in whatever the ratios as per the Partnership Act and the deed they have entered into. So there is a limited liability partnership in equity capital. So these are the various features we have seen for the equity capital. Now, some people may have a doubt that, sir, it cannot be redeemed during the entire lifetime.
That means even the buyback of shares cannot be taken or what? हमने तो बाहर सुना है कि कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स लेके आती है, तो आप बोल रहे हो कि रिडीम हो ही नहीं सकते। रिडीम का मतलब है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स एक बार आ गए तो उनको आप निकाल नहीं सकते। ये बात बिल्कुल सही है, वो एक बार आ गए तो उनको निकाल नहीं सकते, लेकिन उनको ऑफर तो दे सकते हैं निकलने की, है कि नहीं? तो ये जो बायबैक है ना, वो ऑफर है, ऑफर में भी रिजेक्टेड में भी एक्सेप्टेड। ये ऑफर है, प्रपोजल है भैया, उसमें कोई ऐसा रोना धोना की बात नहीं है मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं किया, नहीं भी करेंगे बिकॉज इट्स ऑफर, यस और नो। सो बायबैक ऑफ शेयर्स आर डन बाय द वेरियस कंपनीज फॉर यस डियर। So buyback of shares may be done for various purposes. The first purpose may be, like company wants to get more control over the shareholders. There are basically two types of shareholders, you can categorize it. One is promoters, another one is outsiders. Promoters are those people who have established this company, who have formed this company, जो बड़े बड़े अच्छे पोजीशन में है, जिनके पास significant percentage of shareholding रहता है, say 40, 30, 55%. Now if the special resolution are supposed to be passed, then they require how much of majority to pass that decision? 75% majority, 3/4। ये प्रमोटर भाई साहब को हर बार अगर कुछ डिसीजन लेने पड़ेंगे ऐसे स्पेशल रिजोल्यूशन वाले, तो वो बाकी के शेयर होल्डर है ना, उनके साथ जाके क्या करना पड़ेगा? भाई बापा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? भाई बापा करना पड़ेगा। हमारे माई बाप हो यार, कुछ कर दो, आप हमें अलाउड नहीं करोगे तो हम कैसे डिसीजन लेंगे? अगर उनका कंट्रोल प्रमोटर का बढ़ाना है तो क्या करेगी कंपनी? बायबैक करेगी। बायबैक वो क्या करेगी मालूम है? बाकी सब बाहर के शेयर होल्डर है ना, उनको कहेगी कि मार्केट में अभी कितना पैसा चल रहा है, तुम्हारे शेयर का 400 रुपए चल रहा है, हम आपको 450 देंगे। कितने देंगे? 450। लेकिन आपके शेयर्स आपको हमें दे देने हैं और हम उसको क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अब समझने की कोशिश करो। समझ लो 100 शेयर थे, तो उसमें से 40 थे वो प्रमोटर्स के पास थे और 60 थे वो पब्लिक के पास थे। पब्लिक के पास से अपने 20 का बायबैक ऑफर डाला, तो पब्लिक के पास अब कितने शेयर हो गए? 40। प्रमोटर्स के पास कितने हैं अभी के? वो तो शाणे है, वो तो बायबैक में परफॉर्म करने वाले हैं नहीं, उनको मालूम है उनका कंट्रोल कंपनी के ऊपर बढ़ाना है। तो 40-40 हो गया, तो उनका कंट्रोल इफेक्टिवली कितने परसेंटेज का आ गया अब? तो ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के लिए आपको कोई आउटसाइडर की जरूरत है ही नहीं। वही तो मोदी भाई साहब ने किया है। कोई भी रिजोल्यूशन पास हो जाते हैं, उधर लोकसभा में ऑपोजिशन वाले हैं, कल उनकी जरूरत ही नहीं है। वी हैव गॉट 282 नंबर ऑफ पीपल। वो बोल रहे कि ये अब तो डिस्कस भी नहीं हो रहे बिल। पहले एटलीस्ट डिस्कस तो होते थे कि ये बिल है, पास करना है नहीं करना, उनको मालूम ही नहीं पड़ता। सुबह जाके मालूम पड़ता कि ये बिल आज पास होने वाला है। ऑपोजिशन की तो बेचारों के लग गई है। राज्यसभा में तो और भी उनकी मेजोरिटी अब है नहीं, बाकी सब पार्टीज मिलकर उनके बिल अटका सकती है। देयर आर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, नो बिल नीड्स टू बी पास फ्रॉम बोथ द हाउसेज। तो ये लोग लोकसभा का तो एकदम ऐसे ग्रांटेड ले लेते हैं, क्योंकि वहां पे तो ऑलरेडी मेजोरिटी है। That may be a one reason for the buyback. The another reason for a buyback may be company wants to sell some good positive signal. If the company feels that our shares are right now undervalued, say they are right now valued at 80 rupees, which should have some higher valuation as per their opinion. Kaya 80? Laptop is high on. इधर लिख देते, कोई बात नहीं। अच्छा, वैल्यूएशन ऑफ द शेयर इज 80, बट कंपनी इज फीलिंग दैट इट इज द वेरी अंडरवैल्यूड प्राइस, it should have some higher price in the market. So what they do is they will call for a buyback, and once the people participates in the buyback, they will keep these shares. Say they have purchased it at 80. Now this buyback sends a positive signal among the investors. Investors will feel like companies feeling that the shares are right now undervalued. तो फिर ये पॉजिटिव सिग्नल के कारण इनका जो प्राइस है ना, उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ती है ये पर्टिकुलर शेयर की। तो 5 महीने गए, 6 महीने गए, 8 महीने गए, उसके बाद में कंपनी के पास वो शेयर्स पड़े हुए तो है ही, जो उन्होंने बाईबैक करके रखे हैं। समझ लो प्राइस चली जाती है 120 पे।
5 महीने के बाद, तो यही कंपनी फिर से नए शेयर्स इश्यू करेगी मार्केट में 120 रुपए में। अब क्योंकि अब तो मार्केट प्राइस 80 से कहां पे पहुंच गई है, 120 में। चलो डिस्काउंट दे भी देंगे तो 5 रुपए का दे देंगे। कंपनी ने कितना फायदा कर लिया यहाँ पे, 80 में बाईबैक में परचेस किया लोगों से और 120 में वहां पे जाके सेल कर दिया। Investors generally feel that if the company is putting a buyback offer, no, that means the shares are right now undervalued. That's why they are putting this buyback offer. That's been the common phenomenon, common sort of a perception among the investors. और बायबैक के बाद उनकी प्राइसेस बढ़ती भी है, वो भी देखा हमने हिस्टोरिकली फ्रॉम द डेटा। Features of equity shares are crystal clear. It's not just like you can issue it only at a one point of time when the companies are established. Even after the companies are established, running their businesses pretty well, if the equity shares are supposed to be issued, they can come up with, definitely. ऐसा भी होता है कि प्राइवेट कंपनी होती है जो पब्लिक मार्केट में भी गई ही नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना है तो मार्केट में अपने शेयर्स फ्लोट करने पड़ेंगे, तो उनका आईपीओ आ गया। तो आईपीओ का मतलब ये नहीं कि एक ही बार कर सकते हो जब बिजनेस एस्टेब्लिश कर दिया। जोमेटो कब से है, 2003, 4, 5, 6 से नाम सुन रहे हो ना आप, तो यहाँ पे 4-5 साल से पहले से आया। मुंबई वगैरह में मेट्रो सिटीज में तो कब से वो जोमेटो काम कर रहा है, अब जाके आईपीओ आया उनका पहली बार। अच्छा, एक ऐसा भी नहीं है कि आप एक ही बार पब्लिक में ऑफर कर सकते हो। एक बार ऑफर कर दिया, उनको लगे कि भाई फिर से हमें पब्लिक के पास से पैसा चाहिए, तो फिर से वो लेके आएंगे, उसको कहते हैं एफपीओ। क्या कहते हैं? एफपीओ, फर्दर पब्लिक ऑफर। सही में एफपीओ ही है उसका नाम। So features are clear. Next lecture we will discuss the advantages and disadvantages of the equity finance from the very practical perspective, and we will find the cost of equity shares. For a company, what is the cost of equity shares? There are few mathematical calculations. So now onwards, all the concepts you will have now will have a bit of a mixture of some part theory and some part will be a practical. एक दो थियरी के जाएंगे, एक तो प्रैक्टिकल, तो मजा आता जाएगा। थियोरी में नॉलेज मिलता है और प्रैक्टिकल में हमें थोड़ा सा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी चलता है, तो दोनों चीजें आती रहेगी। प्लीज पुट योर एनरोलमेंट नंबर एज अ मार्क ऑफ योर अटेंडेंस फॉर द डे। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। If the online students have any queries or questions, they may definitely raise it. I am really sorry, कोई लोगों को लगेगा कि सर जब से ऑफलाइन शुरू हुआ हमें तो कोई भाव ही नहीं दे रहा है। And if you are crystal clear, then I am expecting a confirmation in the chat box, please. Clear, sir. Yes, related to mid-semester examination, some students were asking me that what may be a syllabus. One entire module will be there, first module, and second module up to a point will be covering before the mid-semester examination. Those every concepts are eligible to be asked in the first mid-sem. तो जब तक हम जितना करने वाले हैं ना मिड-सेम से पहले, उसमें से कुछ भी आ सकता है। समझ में आया कि नहीं? Now I guess including this we have got 8 sessions. Now it will be 7 more sessions before your mid-sem exam starts. So we'll be able to complete the significant portion of the second module during these 7 sessions. So 2 modules should be done, almost 80% it should be done. So this is how your course syllabus will be for the first mid-sem. Major focus should be put by you on the time value of money because we have put lot of focus on that. तो आपको भी preparations में थोड़ा सा focus उसके ऊपर करना है. Go through with the types of annuities, go through with the formulas, have a conceptual understanding what is annuity due, what is ordinary annuity, what is the differential uneven cash flow, what is the compounding factor, what is discounting factor, what is the process of compounding and discounting, what is time value of money. Conceptual clarity must be there. And practicals as well. अभी तक कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है कि एग्जाम कैसे होगा, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांस ऐसे है कि इस बार ऑफलाइन हो सकता है एग्जाम। ऑफलाइन ही है ना? हाँ, तो फिर प्रैक्टिकल्स वगैरह सब आएंगे बेटा, अच्छी तरीके से करना पड़ेगा। ABCD वाला जमाना गया। इतने भाई साहब है जिनको मुझे जगाना है।
नहीं यहाँ पे बहुत सारे तो इधर ही होंगे क्या?